Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk. Hashtag, hashtag, hashtag. Asterisk. Hashtag, hashtag, hashtag.
Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk.
Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1, asterisk. 2, asterisk. 3, asterisk. 4, asterisk. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1, asterisk. 2, asterisk. 3, asterisk. 4, asterisk. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1, asterisk. 2, asterisk. 3, asterisk. 4, asterisk. 5, asterisk. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag.
Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk 5 asterisk. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk 4 asterisk 5 asterisk. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag.
Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. बाल्यकाल मित्रता, प्रेम और साहस का प्रतीक। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल खेल में कई अद्भुत काम किए, जैसे कालिया नाग का नाश करना, जिससे यमुना नदी में विष का भय समाप्त हो। कृष्ण ने अपने दोस्तों को यह सिखाया कि किसी भी विपत्ति से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की घटना। एक बार इंद्रदेव के कोप से ब्रजभूमि में मूसलधार वर्षा होने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए और अपने पशुधन को बचाने के लिए भागने लगे। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि वे इंद्र से डरे नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका दुरुपयोग। जब इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू की, तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिलाए। यह देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह तू बाल्यकाल मित्रता, प्रेम और साहस का प्रतीक। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल खेल में कई अद्भुत काम किए, जैसे कालिया नाग का नाश करना, जिससे यमुना नदी में विष का भय समाप्त हो। कृष्ण ने अपने दोस्तों को यह सिखाया कि किसी भी विपत्ति से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की घटना। एक बार इंद्रदेव के कोप से ब्रजभूमि में मूसलधार वर्षा होने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए और अपने पशुधन को बचाने के लिए भागने लगे। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि वे इंद्र से डरे नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका दुरुपयोग। जब इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू की, तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिलाए। यह देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह बाल्यकाल मित्रता, प्रेम और साहस का प्रतीक। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल खेल में कई अद्भुत काम किए, जैसे कालिया नाग का नाश करना, जिससे यमुना नदी में विष का भय समाप्त हो। कृष्ण ने अपने दोस्तों को यह सिखाया कि किसी भी विपत्ति से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की घटना। एक बार इंद्रदेव के कोप से ब्रजभूमि में मूसलधार वर्षा होने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए और अपने पशुधन को बचाने के लिए भागने लगे। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि वे इंद्र से डरे नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका दुरुपयोग। जब इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू की, तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिलाए। यह देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह बाल्यकाल मित्रता, प्रेम और साहस का प्रतीक। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल खेल में कई अद्भुत काम किए, जैसे कालिया नाग का नाश करना, जिससे यमुना नदी में विष का भय समाप्त हो। कृष्ण ने अपने दोस्तों को यह सिखाया कि किसी भी विपत्ति से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की घटना। एक बार इंद्रदेव के कोप से ब्रजभूमि में मूसलधार वर्षा होने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए और अपने पशुधन को बचाने के लिए भागने लगे। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि वे इंद्र से डरे नहीं,
बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करे। उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका दुरुपयोग। जब इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू की, तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिलाए। यह देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह बाल्यकाल मित्रता, प्रेम और साहस का प्रतीक। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल खेल में कई अद्भुत काम किए, जैसे कालिया नाग का नाश करना, जिससे यमुना नदी में विष का भय समाप्त हुआ। कृष्ण ने अपने दोस्तों को यह सिखाया कि किसी भी विपत्ति से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की घटना। एक बार इंद्रदेव के कोप से ब्रजभूमि में मूसलधार वर्षा होने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए और अपने पशुधन को बचाने के लिए भागने लगे। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि वे इंद्र से डरे नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका दुरुपयोग। जब इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू की, तब श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिलाए। यह देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में भी संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिए। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह बाल्यकाल मित्रता, प्रेम और साहस का प्रतीक। कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल खेल में कई अद्भुत काम किए, जैसे कालिया नाग का नाश करना, जिससे यमुना नदी में विष का भय समाप्त हुआ। कृष्ण ने अपने दोस्तों को यह सिखाया कि किसी भी विपत्ति से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की घटना। एक बार इंद्रदेव के कोप से ब्रजभूमि में मूसलधार वर्षा होने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए और अपने पशुधन को बचाने के लिए भागने लगे। कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि वे इंद्र से डरे नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका दुरुपयोग। भगवान श्रीकृष्ण की कथा में अनेक प्रेरणादायक प्रसंग हैं, जो जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। यहाँ उनके जीवन की कुछ और प्रेरक घटनाएं दी गई है, जो हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। 1. सत्य की शक्ति। पूतना वध। कृष्ण का जन्म होने के तुरंत बाद कंस ने उन्हें मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना ने कृष्ण को मारने के लिए दूध में विष मिलाकर स्तनपान कराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया और अंततः उसका वध कर दिए। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और अच्छाई का मार्ग अपनाने वाले को अंततः विजय ही मिलती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सत्य की शक्ति के सामने कोई बुराई टिक नहीं सकती। 2. बाल्यकाल में चोरी और सजा की सीख। श्रीकृष्ण अपने बाल्यकाल में माखन चुराते थे। जब यशोदा ने उन्हें पकड़ा तो कृष्ण ने मासूमियत भरी बातों से उन्हें मोहित कर लिए। यह घटना हमें यह बताती है कि बचपन की मासूमियत और ईमानदारी से भी कठोर मन को पिघलाया जा सकता है। कृष्ण ने यह भी दिखाया कि कोई भी सजा देने से पहले हमें स्थिति की गहराई को समझना चाहिए और फिर सही दृष्टिकोण से निर्णय लेना चाहिए। 3. गोपियों के वस्त्रहरण, मोह को त्यागने की सीख। श्रीकृष्ण ने एक बार यमुना नदी में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र उठा लिए थे। उन्होंने यह काम गोपियों को यह सिखाने के लिए किया कि मोह और अभिमान को त्यागना चाहिए। जब गोपियां कृष्ण से वस्त्र लौटाने की विनती करने लगीं, तब कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि उन्हें केवल ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में मोह और अभिमान को त्याग कर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण ही सबसे बड़ा धन है। 4. सुदामा का आदर, मित्रता का महत्व। श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता एक ऐसी कहानी है जो सच्ची मित्रता का प्रतीक मानी जाती है। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारका के राजा। लेकिन जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने सुदामा का स्वागत बड़े सम्मान के साथ किए। कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्ची मित्रता धन धर्म, जाति पाति, ऊंच नीच से परे होती है। यह घटना सिखाती है
कि हमें अपने मित्रों का सम्मान करना चाहिए और कभी उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उद्धव को भक्ति का महत्व बताना। उद्धव श्री कृष्ण के बाल सखा थे और एक महान ज्ञानी थे। एक बार कृष्ण ने उन्हें ब्रज भेजा ताकि वे गोपियों को जीवन के सत्य का उपदेश दे। उद्धव जब गोपियों से मिले तो उन्होंने देखा कि उनका प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने कृष्ण के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। उद्धव ने यह महसूस किया कि शास्त्र ज्ञान से भी ऊपर भक्ति का स्थान है और केवल भक्ति के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी ज्ञान का असली अर्थ तब तक नहीं होता जब तक उसमें प्रेम और भक्ति का समावेश न। 6. धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर उसे उसके कर्तव्य का बोध कराए। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन असमंजस में था कि वह अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता है। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और समझाया कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 7. मीराबाई को मार्गदर्शन। मीराबाई कृष्ण की परम भक्त थीं और समाज द्वारा बहिष्कृत होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण से अपने प्रेम और भक्ति का त्याग नहीं किए। श्री कृष्ण ने मीराबाई को मार्गदर्शन दिया और उन्हें प्रेम का सही अर्थ समझाए। मीराबाई की भक्ति और समर्पण ने उन्हें समाज के नियमों से ऊपर उठाया और उन्हें भगवान के सच्चे भक्तों में स्थान दिलाए। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति के मार्ग में किसी भी बाधा को महत्व नहीं देना चाहिए। 8. ध्रुव को भक्ति का मार्ग दिखाना। ध्रुव एक छोटे राजकुमार थे जिन्हें अपनी सौतेली मां के द्वारा राजमहल से निकाल दिया गया था। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए और कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जो कोई भी सच्ची भक्ति में लीन होता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रसंग से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई भी कठिनाई क्यों न आए, हमें भगवान की भक्ति में अडिग रहना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं देता है। उनके उपदेशों और कार्यों से हमें प्रेम, मित्रता, कर्तव्य, भक्ति और सत्य का महत्व समझ में आता है। जीवन में जब भी हमें कोई कठिनाई आए तो हमें श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। दिखाना। ध्रुव एक छोटे राजकुमार थे जिन्हें अपनी सौतेली मां के द्वारा राजमहल से निकाल दिया गया था। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए और कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जो कोई भी सच्ची भक्ति में लीन होता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रसंग से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई भी कठिनाई क्यों न आए, हमें भगवान की भक्ति में अडिग रहना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं देता है। उनके उपदेशों और कार्यों से हमें प्रेम, मित्रता, कर्तव्य, भक्ति और सत्य का महत्व समझ में आता है। जीवन में जब भी हमें कोई कठिनाई आए तो हमें श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। दिखाना। ध्रुव एक छोटे राजकुमार थे जिन्हें अपनी सौतेली मां के द्वारा राजमहल से निकाल दिया गया था। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए और कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जो कोई भी सच्ची भक्ति में लीन होता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रसंग से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई भी कठिनाई क्यों न आए, हमें भगवान की भक्ति में अडिग रहना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं देता है। उनके उपदेशों और कार्यों से हमें प्रेम, मित्रता, कर्तव्य, भक्ति और सत्य का महत्व समझ में आता है। जीवन में जब भी हमें कोई कठिनाई आए तो हमें श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। दिखाना। ध्रुव एक छोटे राजकुमार थे जिन्हें अपनी सौतेली मां के द्वारा राजमहल से निकाल दिया गया था। वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए और कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि जो कोई भी सच्ची भक्ति में लीन होता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रसंग से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई भी कठिनाई क्यों न आए, हमें भगवान की भक्ति में अडिग रहना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें कई प्रकार की प्रेरणाएं देता है।
उनके उपदेशों और कार्यों से हमें प्रेम, मित्रता, कर्तव्य, भक्ति और सत्य का महत्व समझ में आता है। जीवन में जब भी हमें कोई कठिनाई आए तो हमें श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा से अनेक प्रेरणादायक कहानियां और शिक्षाएं मिलती है। उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों में भी कैसे धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण के जीवन की कुछ अन्य प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत हैं। 1. वासुदेव और देवकी के साथ किया वचन निभाना। कृष्ण का जन्म कंस के कारावास में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी ने कंस के अत्याचारों का सामना किया और हर रात भगवान से प्रार्थना की कि उनका पुत्र संसार को कंस के आतंक से मुक्ति दिला। कृष्ण को गोकुल भेज दिया गया ताकि वे सुरक्षित रहें और कंस से दूर रहे। बड़े होने पर कृष्ण ने अपने माता पिता से किया वादा निभाया और कंस का वध कर उन्हें और पूरे मथुरा नगर को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिला। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि माता पिता के प्रति प्रेम और कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। अपने वचनों को निभाने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए। 2. रुक्मिणी का प्रेम और कृष्ण का सच्चा समर्पण। रुक्मिणी विदर्भ राज्य की राजकुमारी थीं और उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन उनके भाई रुक्मी उनकी शादी किसी और से तय करना चाहते थे। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक पत्र लिखकर उनसे सहायता की प्रार्थना की। कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश मिलते ही विदर्भ जाकर उनका हाथ थाम लिया और उन्हें अपने साथ द्वारका ले आ। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और विश्वास के लिए व्यक्ति को साहस से काम लेना चाहिए। सच्चे प्रेम में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति होती है और कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। 3. अर्जुन को गीता का उपदेश, जीवन का मार्गदर्शन। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन को कर्म और धर्म का महत्व समझाए। कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति का कर्तव्य उसके धर्म से निर्धारित होता है और उसे केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों से डरकर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। 4. कर्ण के प्रति दया और उदारता। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बात बताई कि वे कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हैं। कृष्ण ने कर्ण को यह भी विकल्प दिया कि वह पांडवों के पक्ष में शामिल होकर युद्ध करे। हालांकि कर्ण ने दुर्योधन से अपनी मित्रता और वचन का पालन करते हुए कौरवों का साथ देने का निश्चय किए। कृष्ण ने कर्ण की इस वफादारी और दानशीलता का सम्मान किया और उन्हें युद्ध में विशेष रूप से गौरवान्वित किए। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि हमें किसी के प्रति अपने दिल में द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हर व्यक्ति के अच्छे गुणों को देखना और उनका आदर करना चाहिए, चाहे वह प्रतिद्वंदी ही क्यों न। मथुरा से द्वारका का निर्माण, त्याग और दूरदृष्टि। जब कंस का वध हो गया और मथुरा में शांति लौट आई, तब कंस के पिता जरासंध ने मथुरा पर हमला करना शुरू कर दिए। अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और एक नई नगरी द्वारका बसाने का निर्णय लिए। द्वारका को समुद्र के किनारे बसाया गया, जिससे मथुरा के लोग वहां सुरक्षित रह सके। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमें अपने स्वार्थों का त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। कृष्ण का यह त्याग यह दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए खुद को प्राथमिकता नहीं देता। 6. विदुर का सत्कार, सच्ची सेवा का मूल्य। महाभारत के समय में विदुर एक राजकुल का सदस्य होने के बावजूद सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने राजमहल में जाने के बजाय विदुर के घर भोजन ग्रहण करना पसंद किए। विदुर ने अपने सीमित साधनों से ही कृष्ण का स्वागत किया और कृष्ण ने उनके प्रेम और सच्चाई का सम्मान किए। इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा सम्मान और प्रेम बाहरी भव्यता में नहीं, बल्कि दिल से की गई सेवा में होता है। सच्चा प्रेम और भक्ति कभी भी दिखावे की अपेक्षा नहीं करता। 7. यदुवंश का अंत, मोह और अहंकार का परिणाम। श्री कृष्ण का यदुवंश अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन अंततः उनके ही वंश का नाश हो गए। श्री कृष्ण ने स्वयं यह बात पहले ही जान ली थी और इसे स्वीकार किया, क्योंकि यह उनके कर्म का ही परिणाम था। यदुवंशी युद्ध में लिप्त हो गए और आपस में ही एक दूसरे को नष्ट कर दिए। यह घटना यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी महान क्यों न हो,
अगर हमारे मन में अहंकार और असहिष्णुता आ जाए तो वह हमारे पतन का कारण बन सकती है। श्री कृष्ण ने अपने ही वंश के विनाश को देखकर भी इसे स्वीकार किया और यह सिखाया कि जीवन में परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। उद्धव के साथ भक्ति और ज्ञान पर संवाद। उद्धव श्री कृष्ण के बाल सखा और परम भक्त। श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास यह सिखाने के लिए भेजा कि वे ज्ञान के मार्ग पर चले, लेकिन जब उद्धव गोपियों से मिले तो उनकी भक्ति को देखकर अचंभित रह गए। उद्धव ने महसूस किया कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और श्रेष्ठ है। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन जब उसमें भक्ति का समावेश होता है तभी वह सार्थक बनता है। भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना भक्त। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये कहानियां हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। उनका जीवन हर परिस्थिति में संयम, धैर्य, प्रेम, त्याग और सत्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, सच्चाई, भक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने ही वंश के विनाश को देखकर भी इसे स्वीकार किया और यह सिखाया कि जीवन में परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। उद्धव के साथ भक्ति और ज्ञान पर संवाद। उद्धव श्री कृष्ण के बाल सखा और परम भक्त। श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास यह सिखाने के लिए भेजा कि वे ज्ञान के मार्ग पर चले, लेकिन जब उद्धव गोपियों से मिले तो उनकी भक्ति को देखकर अचंभित रह गए। उद्धव ने महसूस किया कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और श्रेष्ठ है। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन जब उसमें भक्ति का समावेश होता है तभी वह सार्थक बनता है। भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना भक्त। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये कहानियां हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। उनका जीवन हर परिस्थिति में संयम, धैर्य, प्रेम, त्याग और सत्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, सच्चाई, भक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन जब उसमें भक्ति का समावेश होता है तभी वह सार्थक बनता है। भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना भक्त। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ये कहानियां हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। उनका जीवन हर परिस्थिति में संयम, धैर्य, प्रेम, त्याग और सत्य का उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, सच्चाई, भक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनंत प्रेरणाओं से भरा हुआ है, जिसमें हर घटना जीवन की महत्वपूर्ण सीख को प्रकट करती है। यहाँ श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित कुछ और अद्भुत प्रसंग है जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। 1. राधा और कृष्ण का प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय संस्कृति में शुद्ध और पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा का प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ, असीमित और भक्ति से भरा था। राधा ने कभी कृष्ण को अपने अधिकार में नहीं समझा, बल्कि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रेम का सबसे श्रेष्ठ रूप माना। दोनों का प्रेम सांसारिक इच्छाओं से ऊपर था और भक्तिभाव में लीन था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी प्रकार की आशा या स्वार्थ की भावना से नहीं होता। सच्चा प्रेम त्याग, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। राधा का प्रेम यह सिखाता है कि जब हम किसी के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण से भरे होते हैं तो वह प्रेम हमें उस व्यक्ति के करीब ले आता है, चाहे वह हमारे सामने न भी। 2. द्रौपदी की लाज बचाना, सच्ची मित्रता का कर्तव्य। महाभारत के एक प्रसंग में द्रौपदी का चीरहरण कौरव सभा में किया जा रहा था। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने दिव्य शक्ति से उनकी लाज बचा। कृष्ण ने यह कार्य केवल अपनी सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम के कारण किए। द्रौपदी और कृष्ण की मित्रता यह दर्शाती है कि सच्चा मित्र वह होता है जो संकट के समय में बिना किसी स्वार्थ के सहायता के लिए आता है। यह घटना सिखाती है कि हमें अपने मित्रों का साथ हर परिस्थिति में देना चाहिए, चाहे वह कोई भी कठिनाई क्यों न। मित्रता का सही अर्थ तभी है जब हम अपने मित्र की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। 3. कालिया नाग का नाश, साहस और निर्भयता की सीख। कृष्ण के बाल्यकाल का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जब उन्होंने कालिया नाग को यमुना नदी में देखा जो वहां जहर फैलाकर लोगों को परेशान कर रहा था। कृष्ण ने निडर होकर नदी में छलांग लगाई और कालिया नाग के सिर पर नृत्य करके उसे पराजित किए।
कालिया ने हार मान ली और कृष्ण के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में डर से नहीं बल्कि साहस और निडरता से सामना करना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, यदि हम निर्भय होकर उसे स्वीकार करें तो हम उसे दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं। 4. सांदीपनी मुनि के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति कृतज्ञता। एक समय जब कृष्ण और उनके भाई बलराम ने अपने गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, तो उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के खोए हुए पुत्र को वापस लाकर देने का वचन दिए। कृष्ण ने यह कठिन कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से किया और अपने गुरु की इच्छा को पूरा किए। यह प्रसंग सिखाता है कि गुरु का आदर और उनके प्रति कृतज्ञता रखना हर शिष्य का कर्तव्य है। सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है और उनके लिए हर संभव सेवा करता है। शिशुपाल का वध, सहनशीलता और धर्म का पालन। शिशुपाल ने श्रीकृष्ण का कई बार अपमान किया और उनके प्रति द्वेष रखा। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियों तक क्षमा किया, लेकिन जब उसने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन किया तब श्रीकृष्ण ने उसका वध किए। श्रीकृष्ण ने यह सिखाया कि सहनशीलता और क्षमा महत्वपूर्ण गुण है, परंतु जब अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए तब उसे समाप्त करना ही धर्म है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में धर्म और न्याय का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सत्य और धर्म के लिए कठोर निर्णय लेना भी आवश्यक होता है। 6. परीक्षित का कलियुग को स्थान देना, समय का महत्व। एक अन्य प्रसंग में जब श्रीकृष्ण के वंशज राजा परीक्षित को कलियुग के प्रवेश की सूचना मिली, तब उन्होंने उसे केवल उन स्थानों पर रहने का आदेश दिया जहां अधर्म, झूठ, नशा और पाप निवास करते हैं। परीक्षित ने कलियुग को यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म का पालन करने वाले स्थान पर उसे स्थान नहीं मिलेगा। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई को स्थान नहीं देना चाहिए। कलियुग की तरह ही बुराई तभी पनपती है जब हम उसे अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं। 7. राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का दृढ़ संकल्प। ध्रुव एक छोटे बालक थे जिन्हें उनके पिता ने उनके सौतेली मां के कहने पर तिरस्कृत कर दिया था। दुखी होकर ध्रुव ने भगवान नारायण की कठिन तपस्या की और श्रीकृष्ण के रूप में विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें ध्रुव तारे के रूप में स्थान दिए। ध्रुव की कहानी दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और भक्ति का प्रतीक है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा संकल्प अटल हो और हम ईश्वर की भक्ति में दृढ़ हो तो संसार की कोई भी शक्ति हमें अपने उद्देश्य से भटका नहीं सकती। ध्रुव का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों को पाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। 8. भगवान श्रीकृष्ण का जीवन का अंतिम समय, सत्य का सम्मान। श्रीकृष्ण का जीवन सत्य और धर्म के पालन का उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर सच्चाई का पालन किया, लेकिन जब यदुवंश में अनैतिकता और अत्याचार बढ़ गया तब उन्होंने इसे सहन नहीं किया और इसे खत्म करने के लिए स्वयं को भी त्याग दिए। श्रीकृष्ण ने जानबूझकर ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसमें यदुवंश का अंत हो सके और स्वयं अंत में वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में अपना शरीर त्याग दिए। इससे यह सीखने को मिलता है कि सत्य और धर्म के लिए हमें अपने प्राणों की भी आहुति देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चे धर्म का मार्ग अपनाने के लिए हमें त्याग और बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य, साहस, सत्य, प्रेम और भक्ति का महत्व कितना है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए और धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उनके जीवन के ये प्रसंग हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती यदि हम सही मार्ग पर चले और अपने का पालन करें। इससे यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा संकल्प अटल हो और हम ईश्वर की भक्ति में दृढ़ हो तो संसार की कोई भी शक्ति हमें अपने उद्देश्य से भटका नहीं सकती। ध्रुव का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करने और अपने सपनों को पाने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। 8. भगवान श्रीकृष्ण का जीवन का अंतिम समय, सत्य का सम्मान। श्रीकृष्ण का जीवन सत्य और धर्म के पालन का उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर सच्चाई का पालन किया, लेकिन जब यदुवंश में अनैतिकता और अत्याचार बढ़ गया तब उन्होंने इसे सहन नहीं किया और इसे खत्म करने के लिए स्वयं को भी त्याग दिए। श्रीकृष्ण ने जानबूझकर ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसमें यदुवंश का अंत हो सके और स्वयं अंत में वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में अपना शरीर त्याग दिए। इससे यह सीखने को मिलता है
कि सत्य और धर्म के लिए हमें अपने प्राणों की भी आहुति देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चे धर्म का मार्ग अपनाने के लिए हमें त्याग और बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य, साहस, सत्य, प्रेम और भक्ति का महत्व कितना है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए। Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, hashtag, hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag, 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 hashtag. 1 asterisk 2 asterisk 3 asterisk